Hi friends, this is CA Shubhi Agarwal and today I will be discussing further parts of the video on the Indian Contract Act 1872. So, without wasting much of time, let's start. In the previous video, we have discussed regarding what is a contract, what is the difference between agreement and contract, what are the essentials of a valid contract, uh, and in this part I will be discussing further on Indian Contract Act 1872. So types of contracts. The contracts are basically divided on the basis of validity or enforceability, then formation and performance. सो इसको हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग. सो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी द कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, void contracts, voidable contracts, illegal agreements and unenforceable contracts. तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. तो सबसे पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन अग्रीमेंट विच इज़ बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो अभी जो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के, वो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में सारे एलिमेंट्स होते हैं और जो अग्रीमेंट जो कि बाइंडिंग है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, दैट इज़ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है. ए आस्क बी इफ़ ही वॉन्ट्स टू बाई हिज बाइक फॉर 50,000. बी अग्रीज टू बाई बाइक. इट इज़ एन अग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, हैंस इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगला टाइप आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2J. It states as follows: a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Thus, a void contract is one which cannot be enforced by a court of law. तो void contract क्या होते हैं? ऐसे contracts जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं हो सकते हैं, तो उनको हम void contracts बोलते हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. मिस्टर एक्स अग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर. Such contract is valid, but after a few days, X dies in an accident. Here, the contract becomes void due to the impossibility of the performance of the contract. Thus, a valid contract when cannot be performed because of some uncalled happening becomes void. This is one of the type जिसमें एक contract void कैसे बन जाता है. जो उसको fulfill कर रहा था वो पार्टी ही नहीं रही, तो the contract cannot be enforced in the court of law. इस वजह से ये हो जाता है void. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. A contracts with B for supply of 10 tons of sugar, but before the supply is effected, the fire caught in the factory and everything was destroyed. Here the contracts become void. तो एक इवेंट की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी थी वो इम्पॉसिबल हो गई. इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो void हो गया. It may be added by way of clarification here that when a contract is void, it is not a contract at all, but for the purpose of identifying it, it has to be called a void contract. Void contract का मतलब वो contract है ही नहीं, वो enforceable by law नहीं है, तो वो contract ही नहीं है, लेकिन उसको for purpose of identifying हम void बोल देते हैं. अगला आ जाता है voidable contract. Voidable contract क्या होता है? Section 2I defines that an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract. तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि enforceable by law है at the option of one or more parties. कुछ पार्टीज़ हैं वो डिसाइड करेंगी वो enforceable होगा या नहीं, और कुछ पार्टीज़ नहीं डिसाइड कर पाएंगी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम voidable बोलते हैं. This in fact means that one of the parties to the agreement is in a position or is legally entitled or authorized to avoid performing his part, then the agreement is treated and becomes voidable. अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. When the consent of a party is not free is caused by coercion, undue influence, misrepresentation or fraud. एग्जाम्पल है X promised to sell his scooter to Y for rupees 1 lakh. X ने प्रॉमिस किया Y को कि 1 लाख रुपए की स्कूटर बेच देगा. However, the consent of X has been procured by Y at a gunpoint. X is an aggrieved party and his contract is voidable at his option but not on the option of Y.
It means X, if X accepts the contract becomes a valid contract, then Y has no option of rescinding the contract. अब इसमें कोवर्जन इन्वॉल्व हो गया. X ने गन पॉइंट पे बोला कि तुम मुझे अपनी स्कूटर बेच दो Y से. अब Y का ऑप्शन, Y जो है वो डिसाइडिंग पार्टी है यहाँ पे. अगर वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है. तो इट इज़ एट द ऑप्शन ऑफ वाई, हेंस इट इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. When a person promises to do something for another person but the other person prevents him from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the first person. इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. There is a contract between A and B to sell car of A to B for 2 lakh. On the due date of performance, A asked B that he does not want to sell his car. Here the contract is voidable at the option of B. अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू समथिंग फॉर अनदर. अब इसने ए ने प्रॉमिस किया बी के लिए कुछ करेगा, बट द अदर पर्सन प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस. द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट पर्सन. अब जो ए है वो प्रिवेंट कर रहा है कि उसको नहीं बेचनी है. अब ये बी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो ये मना कर सकता है और चाहे तो वो बोल सकता है नहीं, देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट. सो दिस इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक पार्टी के उससे चल रहा है कहने से. व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट promise to perform a work within a specified time could not perform that within that time, the contract is voidable at the option of the promisee. एग्जाम्पल देखते हैं. ए अग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी अप टू 31/3/2022 बट ए कुड नॉट कंप्लीट द हाउस ऑन दैट डेट. हेयर कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी. बी के पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है कि वो रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो टाइम लैप्स हो गया जिस टाइम में उसने बोला था डिलीवर करने के लिए. At this juncture, it would desirable to know the distinction between a void contract and a voidable contract, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है. वैसे आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस, बट उसको लैंग्वेज में देख लेते हैं जो मटेरियल की है. मीनिंग void contract, a contract ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Voidable contract, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other or others is a voidable contract. अगला आता है enforceability. A void contract cannot be enforced at all. Voidable, it is enforceable only at the option of aggrieved party and not at the option of the other party. Cause, a contract becomes void due to change in the law or change in the circumstances. A contract becomes a voidable contract if the consent of the party was not free. अगला आते हैं performance of contract. A void contract cannot be performed. Voidable contract, if the aggrieved party does not within reasonable time exercise his right to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of the contract. आगे जाते हैं rights. A void contract does not grant any legal remedy to the party. Rights for voidable contract, the party whose consent was not free has the right to rescind the contract within a reasonable time. If so rescinded, it becomes a void contract. If it is not rescinded, it becomes a valid contract. तो जो voidable contract है, सीधा सादी ये समझें तो वो एक पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है. उस पार्टी के पास ऑप्शन होता है या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड बना दे या वैलिड बना दे. तो दैट इज़ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक वैलिड में कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड इट कैन नॉट बी, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. आगे आ जाते हैं. अब 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हमने देख ली. अब आगे आ जाते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पे. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड. द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट. All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. Despite this, there is a similarity between them, is that both cases they may be void ab initio and cannot be enforceable by law. तो जो मेन बात है, ये जो लाइन है आप उसको नोट कर लीजिए. ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर void. जितने भी इलीगल अग्रीमेंट्स हैं सारे के सारे void होते हैं. लेकिन जो सारे के सारे अग्रीमेंट void हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इलीगल भी हों. ठीक है. वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरुआत से ही वो वॉइड था. आगे आ जाते हैं एग्जाम्पल 23 पे. कॉन्ट्रैक्ट
that is immoral or opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, if R agrees with S to purchase brown sugar, it is illegal agreement. ठीक है. According to section 2G of Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is void. The act has specified various factors due to which an agreement may be considered as void agreement. One of these factors is unlawfulness of object and consideration of the contract. That is illegality of the contract which makes it void. The illegal and void agreements differ from each other. अब इसमें देखेंगे illegal और void contracts में difference क्या है. void contract जो होता है वो contract होता ही नहीं है. illegal agreement क्या हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो कि illegal है जिसकी वजह से वो contract void हो गया. ठीक है, तो हम देखते हैं डिफरेंस स्कोप. अ void agreement इज़ नॉट एन नेसेसरीली इलीगल, लेकिन एन इलीगल अग्रीमेंट इज़ ऑलवेज void. नेचर not forbidden under law. Void agreement is not forbidden under law. Illegal agreement are forbidden under law. Punishment, parties are not liable for any punishment under the law for the void agreement. Parties to the illegal agreements are liable for punishment. Collateral agreement, it is not necessary that agreements collateral to void agreement may also be void. It may be valid also. Agreements collateral to illegal agreements are always void. तो जो void agreements के साथ जो और agreements होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी void हो, वो valid भी हो सकते हैं. लेकिन जो illegal agreements के साथ जितने भी collateral agreements होते हैं वो सारे के सारे illegal होंगे. तो ये हमने देख लिया difference between void and illegal agreement. आगे आ जाते हैं unenforceable contract. अब ये क्या होते हैं? When a contract is good in substance but because of some technical defect, its absence in writing, barred by limitation, etc., one or both the parties cannot sue upon it. It is described as an unenforceable contract. ठीक है, तो when a contract is good in substance but because of some technical defect, that is absence in writing, barred by limitation, one or both parties cannot sue upon it, it is an unenforceable contract. एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि सब ठीक ठाक है लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो गया, जैसे कि कुछ लिखना रह गया या लिमिटेशन से बाहर हो गया, बार्ड बाय लिमिटेशन, तो जिसकी वजह से जो पार्टी हैं दे कैन नॉट स्यू ईच अदर. दिस इज़ नोन एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. A bought goods from B in 2018 but no payment was made till 2022. B cannot sue A for payment in 2022 as it has crossed 3 years and barred by limitation act. A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as barred by limitation act. अब limitation act में क्या होता है, हमने बोल दिया कि 3 साल हो गया, अब 3 साल के बाद वो चीज़ ख़त्म, जो इलीगल चीज़ थी वो अब बार्ड हो गई, लिमिटेशन एक्ट ने उसको बार कर दिया. अब 3 साल क्रॉस हो चुके हैं, अब आप उस पर कुछ भी स्यू नहीं कर सकते हो. सो दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. सिमिलरली एन अग्रीमेंट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रिटन फॉर बीइंग एनफोर्सिएबल. रिटन होना चाहिए, अगर रिटन नहीं है तो वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, तो ये हमने डिस्क्राइब किया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑफ इन्फोर्सिबल और इन्फोर्सिबिलिटी. अब अगला टाइप आ जाता है फॉर्मेशन. फॉर्मेशन में कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कोजी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट इज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग. सेक्शन 9 of the Act provides that if a proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. ठीक है, एक्सप्रेस मतलब हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया. जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड है वर्ड्स या फिर राइटिंग में वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है. जैसे कि A tell B on telephone that he offers to sell his house for 20 lakh and B in reply informs A that he accepts the offer. It is an express contract. एक्सप्रेस कर दिया पार्टी ने, A ने ऐसा बोला, B ने वैसा बोला और ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन गया. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जिसमें चीज़ें एक्सप्रेस नहीं होती हैं. ठीक है, जैसे कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रास्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन. ये इम्प्लाइड है. अभी एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर हो जाएगा. मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज़ बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज
or course of dealings between them. Section 9 of the Act contemplates such implied contracts when it lays down that it so far as proposal or acceptance is made otherwise than in words. Words के otherwise जो होती हैं इसमें ऐसे एक्सप्रेशन नहीं होता है, वर्ड्स का सहारा नहीं लिया जाता है इसमें. एग्जाम्पल से क्लियर होगा. When a coolie in uniform picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A and A allows him to do so, it is an implied contract and A must pay for the services of the coolie detailed by him. अब एक पर्सन है, कुली है, वो कुली की ड्रेस में है, वो आया लगेज उठा के ले गया और हमने उसको रोका नहीं. ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि वो कुली है, तुम्हारा लगेज ले जा रहा है. तुमने ये नहीं बोला कि वो ये तुमसे नहीं पूछेगा कि मैं ले जाऊँ, तुमने नहीं बोला हाँ ले जाओ, लेकिन तुमने उसको अकम्पनी किया, तो ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बिना वर्ड्स के एग्जीक्यूट हुआ है. ए ड्रिंक्स अ कॉफ़ी इन द रेस्टोरेंट, देयर इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ही शुड पे फॉर द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी. ठीक है. अब टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? अगले टाइप होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स. द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट. Tacit contracts are those which are inferred from the conduct of the parties without any words spoken or written. A classic example of tacit contract would be when cash is withdrawn by a customer of a bank from the automatic teller machine. Another example of a tacit contract is when the contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to at the fall of the hammer in the auction sale. It is not a separate form of contract but falls within the type of इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. एक टाइप है जिसे कह सकते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब होता है साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट. कुछ चीज़ें जो नहीं कही जाती बट वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट ले ली जाती हैं. एग्जाम्पल उन्होंने इसमें एटीएम का दिया हुआ है और जो ऑक्शन सेल होता है उसका दिया है. जो ऑक्शन का जो हैमर गिरता है उसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि डील हो गई है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट विच कम्स अंडर द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. अगला आता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट. It is created by law under certain circumstances. The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. Such obligations are known as quasi contracts. In other words, it is a contract in which there is no intention or part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. Obligation of finder of lost goods to return them to the true owner, or liability of the person to whom the money is paid under mistake to repay it back, cannot be said to arise out of the contract even in remotest sense, as there is neither offer nor acceptance nor consent. These are quasi contract. D. A tradesman leaves goods at C's house by mistake. C treats the goods as his own. C is bound to pay for the goods. अब quasi contracts क्या होते हैं? ये एक एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट का से रिजेंबलेंस होता है. जैसे कि इसमें कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और कोई भी इंटेंशन नहीं होता है किसी भी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट करने का, बट वो एक इम्पोज कर दिया जाता है कि ऐसा हाँ है. फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं गए, किसी का सामान छूट गया और वो हमने रख लिया. दिस इज़ नॉट द थिंग. उसका लाइबिलिटी है कि वो सामान उसको वापस करे. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी ने कुछ भी कहा नहीं, बट ये एक है कि इम्पोज हो गया कि वो ऐसा उसको करना है. तो ये हो गया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. अगला आ जाते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स. When a contract is entered into by two or more parties using electronic means such as emails is known as e-commerce contracts. In electronic commerce, different parties, persons create networks which are linked to their networks through ED1 electronic data interchange. This helps in doing business transactions through electronic mode. These are known as EDI contracts or cyber contracts or mouse click contracts. जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं. ठीक है. तो ये हो गए कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब लास्ट टाइप आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. तो इसमें कैसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स. अब एग्जीक्यूटरी में दो टाइप के होते हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. ये क्या होते हैं हम देखते हैं. तो
ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? द कंसिडरेशन इज गिवन in a given contract would be an act or of forbearance. When the act is done or executed or forbearance is brought on record, then the contract is executed contract. For example, when a grocer sells a sugar on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract. Executed contract मतलब जो execute हो चुका है, जो कि complete हो चुका है, ठीक है. द कंसिडरेशन इज़ गिवन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस. जो कंसिडरेशन है वो हो सकता है कुछ एक्ट करना हो या कोई चीज़ ना करना हो. तो जो भी एक्ट है वो जब हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. अब एक ग्रोसर ने शुगर सेल करी और पेमेंट हो गई, तो दिस इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. सब कुछ हो चुका है इसमें. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन. सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली एंड देयरफॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्क्राइब एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं अभी पूरी तरीके से, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. व्हेन जी अग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच, अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, एंड एच इन कंसिडरेशन promises टू पे जी 1000 पर मंथ, द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज इट इज़ येट टू बी कैरिड आउट. ठीक है. अभी उसने 1000 रुपये दिए नहीं है, वो एग्जीक्यूटरी है, वो अभी देगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. अब यूनिलेटरल बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स दो टाइप के होते हैं. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं हम, यूनिलेटरल और बायलेटरल. एज द नेम सजेस्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज़ परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग. एक पार्टी ने अपनी काम कर दिया, दूसरे पार्टी का काम बाकी है. एग्जाम्पल, एम एडवर्टाइजेज पेमेंट ऑफ अवार्ड्स ऑफ 50,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. As soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of the reward. This type of contract is executory contract. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, एक एम का बच्चा खो गया, बी ने उसको ला दिया. एम ने बोला था कि 50,000 जो भी उसको लाएगा उसको मिलेंगे. अब बी ने उसका बच्चा ले आया, तो उसने अपना काम कर दिया, लेकिन एम ने भी पेमेंट नहीं करी है. तो दिस इज़ एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूनिलेटरल नेचर बिकॉज एक पार्टी का जो काम है वो अभी पेंडिंग है, ठीक है, और एक पार्टी ने अपनी ड्यूटी कर दी है. Bilateral contract, as the name suggests, it is one where the obligation or promise is outstanding on the part of both the parties. किसी भी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है अभी तक इसमें. For example, A promises to sell his plot to B for 10 lakhs cash down, but B pays only 2,50,000 as earnest money and promises to pay the balance on the next Sunday. On the other hand, A gives the possession of the plot to B and promises to execute a sale deed on the receipt of the whole amount. The contract between A and B is executory because there remains something to be done on both the sides. Such executory contracts are also known as bilateral contracts. तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें दोनों ही पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है. तो ये हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है. तो ये जो वीडियो है इसमें हमने बेसिकली देखा कि कॉन्ट्रैक्ट्स को हम किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है. अभी अगले वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग प्रपोजल ऑफर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम देखेंगे प्रपोजल ऑफर की डेफिनेशन देखेंगे और एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि आगे चीज़ों में हम कवर करेंगे, एक्सेप्टेंस वगैरह. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. If you have any doubts, you can comment down below, and please do subscribe to my channel and like the video if you think it was of some help to you. Thank you so much.